السلام علیکم۔ بیٹا 16 فروری 2025 ہے اور اتوار کا دن ہے۔ سب سے پہلے اردو ادب کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے پاکستان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور علی رضا بیٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ میتھ کا پیپر ہے اس لیے بچے نہیں ہیں۔ آپ کی تیاری ہو گئی ہے یا آپ کا پیپر نہیں ہے؟ اچھا اچھا، پیپر آپ کا بھی تیاری کر رہے تھے، چلیے اللہ کرے بہت اچھا پیپر ہو جائے۔ اچھا چلیں، بہت زیادہ یہ ہے کہ آ، آپ کے ساتھ آج نہیں کرتی کلاس، بہت لمبی کہ آپ لوگوں نے ایکسرسائز میتھ تو مانگتا ہے تو لیکن ہم نے شروع کی ہوئی تھی اقتباس کی تشریح۔ تو کل کچھ بچے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اقتباس کی تشریح جو ہے وہ آ، ہر چیپٹر کی کروا دیں، تو میں نے کہا کہ چلیں پھر ہم جو ہے وہ ہر چیپٹر کی کر لیتے ہیں، ہر چیپٹر کے اندر جو امپورٹنٹ اقتباسات ہیں ان کی کرتے ہیں۔ تو کل ہم نے شاید ملمہ میں سے کیا تھا، تو پروفیسر مرزا محمد سعید آ، بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے لیزا بیٹا اس کو ہم نے سٹارٹ میں کیا تھا، اسی کی اقتباس کی تشریح کی تھی ہم نے شاید، مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کیونکہ فائزہ ہمارے ساتھ بعد میں آئی ہے لیزا بیٹا، آپ ڈے ون سے ملمہ کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر پروفیسر مرزا محمد سعید میں سے کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، طریقہ کار سارا وہی ہے، صرف یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ پریکٹس کرنی ہے تو اس کا ذرا بکس کھول کے رکھیں۔ جی جی فائزہ آپ نہیں ہے مجھے پتہ ہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ پاس بک تو ہے نا، پروفیسر مرزا محمد سعید چیپٹر نکالیے تاکہ میں آپ کو مارک کرواؤں جو امپورٹنٹ پیراگراف ہے اس کے اندر سے، اور کریں گے ہم ایک۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جو پہلا پیراگراف ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اکثر اور بیشتر بورڈ میں آتا ہے۔ پہلا جو پیراگراف ہے، صبح اخباروں میں خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ یہ پیراگراف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تشریح کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ اس پیراگراف میں سے آپ کے پاس کوسچنز بھی آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو آپ کا سیکنڈ کوسچن ہوتا ہے وہ والا کوسچن بھی، یہ پہلا پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا ہم آتے ہیں پیج نمبر 7 پہ۔ پیراگراف نمبر 2 کو دیکھیں، مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ یہ پیراگراف 1 2 3 4 لائن پہ آئے، ذرا علمی حلقوں میں نمود حاصل کی، علمی حلقوں میں نمود حاصل کی۔ وعلیکم السلام منصور بیٹا، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے منصور بیٹا، ہم پروفیسر محمد سعید کے جو امپورٹنٹ پیراگراف ہیں جو فیڈرل بورڈ اکثر اٹھاتا ہے، ہم اس کو ذرا جو ہے وہ ٹک کریں گے اس میں سے ایک ہی پیراگراف تشریح کا۔ ٹھیک ہے، پہلا پیراگراف میں آپ کے لیے ریپیٹ کر رہی ہوں موسیٰ بیٹا۔ ٹھیک ہے، پہلا پیراگراف جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا، یہ والا جو پورا پیراگراف ہے اس میں سے تشریح بھی آپ کو آ جاتی ہے، اور اس میں سے وہ جو کوسچنز نیچے آتے ہیں اور آپ نے جواب دینے ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پیج نمبر 7 پہ آئے ہیں، اس کا جو نیکسٹ پیج ہے اس کا پیراگراف نمبر 2 دیکھیے گا۔ مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے، کیونکہ اب جو میں تشریح کرواؤں گی پھر میں آپ کو میننگز وغیرہ اور سب چیز کے ساتھ کرواؤں گی،
ठीक है, क्योंकि टाइम अब आपके पास टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम रह गए। ये बोर्ड आपके हो रहे हैं और 18 मार्च को पहला पेपर है आपका। अच्छा जी, अब हम आएंगे पेज नंबर 8 पे, अगले पेज पे। पहला पैराग्राफ छोड़ेंगे, दूसरा पैराग्राफ छोड़ेंगे, थर्ड पैराग्राफ पे आ जाएं। मिर्जा साहब की जिंदगी बड़ी सीधी सादी थी। ठीक है, यहाँ से लेके कल्बे मुतमइन्ना की दौलत से माला माल थे, यहाँ तक ये पैराग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 9 पे। इसका जो लास्ट पैराग्राफ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर अक्सर बोर्ड में ये वाला पैराग्राफ और जो पहला पैराग्राफ वो अक्सर आता है। ठीक है, तो हम इस पैराग्राफ की अभी तशरीह करेंगे, मुकम्मल तौर पे तशरीह करेंगे पूरी। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपने पूरी तशरीह को कैसे शुरू करना है और कैसे खत्म करना है। ठीक है, इसके लिए हम बोर्ड का सहारा लेंगे। रजिस्टर अपने पास रखिएगा। मुझे ये बताया कि मैथ का पेपर है, आपको कोई टेंशन तो नहीं है कि अब मैथ का पेपर है और हम उर्दू पढ़ रहे हैं? अच्छा, बस मैं चाहती हूँ कि आपका हर पेपर बहुत अच्छा हो, सिर्फ ये नहीं कि उर्दू में पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ उर्दू का पेपर अच्छा हो। मैं चाहती हूँ सारे पेपर्स आपके बहुत अच्छे हो जाए। टेंशन है ना, तो फिर हमारी दुआएं भी तो हैं आपके साथ। ठीक है, हमारी दुआएं भी तो आपके साथ हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सादात फैमिली से ताल्लुक है और मेरी दुआएं बहुत कबूल होती हैं। इंशाल्लाह पेपर ऐसा आएगा कि आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ये टेंशन नहीं होगी आपको। ठीक है, अच्छा जी, रजिस्टर अपने निकाल लें और पेन ले लें। ये बोर्ड मुझे बहुत छोटा पड़ता है, इंशाल्लाह मैं नया बोर्ड लूंगी ताकि आप लोगों को अ, एक ही जगह पे जो है वो जो सवाल करवा रही हूँ कंप्लीट करवा पाऊँ, कि वो एक सीक्वेंस जो है वो बरकरार रहे। खैर, हमारे पास मैं लिख नहीं रही, ये क्योंकि आपके पास बुक्स मौजूद है। पेज नंबर 9 पे लास्ट पैराग्राफ जो है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का, हम उसकी तशरीह करेंगे। ठीक है, तशरीह करने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है तशरीह की ब्लू कट मार्कर से। ठीक है, ब्लू कट मार्कर से तशरीह देनी है आपने। अच्छा जी, हमने राब्ता का निशान लगाने हैं तशरीह के आगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत काउंट हो रही होती हैं, ये एलोज हैं ये। ठीक है, यहीं से पेपर चेक करने वाले का आपका जो स्टार्ट ही होता है ना, वहीं से उसका माइंड बनता है कि इसने कैसी तशरीह की हुई होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी। इन चीज़ों को बस जहन में रखिएगा। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये इक्तबास शामिल निसाब सिनफ़े अदब के एतबार से हिस्सा नसर को हम ब्लू कट मार्कर से लिखेंगे, जबकि हैयत के एतबार से ये खाका भी है। ठीक है, और सवाने भी है। ठीक है, ये है, नून है। अब खाका भी और सवाने भी मैंने दोनों लिख दिए। ठीक है, खाका और सवाने एक ही चीज
के दो नाम होते हैं। अच्छा, ये जहन में रखिएगा। इन दोनों लिख दिए जो आपको इजी लगता है। कि खाका अगर लिखे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, एतबार से खाका है। और ये जो हमने खाका लिखा है ना, इसको हम लिखेंगे ब्लू कट मार्कर से, ठीक है। अब हम सेकंड लाइन लिखेंगे, मुसन्निफ ने आसानो सादा जुबान इस्तेमाल की। मुसन्निफ को खाका नवीसी, इस खाका नवीसी को भी हम कट मार्कर से लिखेंगे ब्लू। मुसन्निफ को खाका नवीसी के मैदान का बादशाह तस्वुर किया जाता है, ठीक है। अब हमने तशरीह शुरू करनी है, ठीक है। अब तशरीह हम डायरेक्ट नहीं शुरू कर देंगे कि मौत तो आनी है, ठीक है। हम डायरेक्ट नहीं शुरू करेंगे, हम थोड़ा सा तमहीदी कलमात कहेंगे, ठीक है। मुसन्निफ ने मिर्जा मोहम्मद सईद खाके की खाके के खाके के तमाम लवाजमात के साथ तहरीर किया। हमने एक जो है वो तमहीदी जुमला लिखा है। हर तशरीह से पहले तमहीदी जुमला लिखना है। एकदम से ये नहीं कि वो जैसे इसको कहते हैं कि गोली मार देना, ठीक है। हम कहेंगे मुसन्निफ ने मिर्जा मोहम्मद सईद खाके के तमाम लवाजमात के खाके के तमाम लवाजमात के साथ तहरीर खाके को मुसन्निफ ने मिर्जा मोहम्मद सईद खाके को आएगा, खाके को तमाम लवाजमात के साथ तहरीर किया। अब हम तशरीह शुरू करेंगे। तशरीह है क्या, आसान अल्फाज का नाम है। और तशरीह से पहले हमने एलोज जो है वो देख लेने हैं क्या है, ठीक है। मौत बरहक है। बरहक का मतलब होता है आनी आनी है, यकीनी है, ठीक है। मरना सबको है, ठीक है। मरना तो हम सब जानते हैं। उसके आगे एक सत्ता का निशान है। वक्फा, वक्फा उसको कहते हैं। कौमे को उर्दू में वक्फा कहते हैं। वक्फा का निशान है, रमूजो वकाफ है। एक एलो ये आ गया हमारे पास। मगर मरने मरने में फर्क होता है। मिर्जा साहब ने खासी अच्छी उम्र पाई, मगर उनकी वफात का सदमा इसलिए ज्यादा है कि ऐसे काबिल, फिर जो वक्फा का निशान आ गया, ऐसे शरीफ, फिर वक्फा का निशान आ गया, और ऐसे वजादार लोग जमाना अब पैदा नहीं करेगा। इसके आगे खत्मा का निशान है, ठीक है। अफसोस, अफसोस के आगे जो है वो फिजाइया का निशान होना चाहिए लेकिन नहीं है। तो आप जो है वो अफसोस के बाद फिजाइया का निशान लगाएंगे, ठीक है। कि प्रोफेसर मोहम्मद सईद वहां हैं जहां हमारी नेक आरजुएं रहती हैं। आरजू कहते हैं ख्वाहिश को। ऐसी जामिउल अलूम, जामिउल अलूम यानी जिसके पास दुनिया के हर मौजू का इल्म मौजूद था। हस्ती से महरूम होने का हमें जितना भी गम हो कम है, ठीक है। गम और कम, हम आवाज अल्फाज आ गए इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब तशरीह करते हुए आपने कहीं पे भी ठीक है, तशरीह करते हुए आपने कहीं पे भी ना मरकजी ख्याल लिखना है, ना ही आपने हले लुगत लिखना है, ना आपने मफहूम लिखना है। अब बोर्ड ये कहता है कि हमें सिर्फ तो आपकी तशरीह चाहिए, ठीक है। इसके अंदर से हमने एलोस निकाल लिए। वक्फा का एक एलो है, एक खत्मा का है, और एक है हमारे पास हम आवाज अल्फाज का। और अगर जहां ये टॉपिक खत्म हो रहा है उसके आगे आपको एक एन का हल्का सा निशान दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एन का एक हल्का सा निशान होगा, इसको कहते हैं मिसरे का निशान। शेर दो मिसरों से मिलके बनता है ना, एक मिसरा लिखा हुआ है, देखें अब कहाँ लोग इस तबीयत के, और उसके आगे निदाइया का निशान है, उस तबीयत के यानी उस मिजाज के, ठीक है। अब मैं तशरीह कर रही हूँ, देखें कैसे होती है तशरीह। मौत और पैदाइश के औकाते कार से हर जी शऊर
जी शऊर जो एक शऊर रखता है, समझ लेता है। हर जी शऊर ना वाकिफ है कि ये कब, कहाँ और कैसे होगा, लेकिन बाहैसियत मुसलमान हमारा अकीदा आखिरत पर मुसम्मम, मुसम्मम का मतलब है पुख्ता यकीन होना। आप पुख्ता भी लिख सकते हैं, पक्का भी लिख सकते हैं, लेकिन जितने उर्दू के लफ्ज स्ट्रॉन्ग लिखेंगे उतने मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अकीदा आखिरत पर लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा अकीदा आखिरत पर मुसम्मम यकीन है। मौत तो सबको, या ऐसा करते हैं, मौत का एक सेकंड बेटा, क्योंकि हम थोड़े से सॉलिड किस्म के जो है ना वो जुमला साजी करनी है। मौत का जायका हर जानदार ने चखना है। ठीक है। मगर मौत कैसी होगी, क्या मौत से पहले आपने जिंदगी में कोई ऐसे कारनामा है सर अंजाम दिए कि आपको मरने के बाद भी अच्छे अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। मिर्जा मोहम्मद सईद ने एक लंबी और मुफीद जिंदगी पाई, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा दिल चाहता है कि उन जैसा जुमला अलूम कहते हैं जितने भी जो है वो हमारे मुआशरे में इल्म है, उन जैसा जुमला अलूम जी वकार हम में मौजूद रहता, मगर अफसुर्दगी है कि अब वो सारे फानी पूछ कर चुके हैं,
लेकिन वो हमेशा एक बेहतरीन, काबिले कदर और दरवेश, लेकिन वो हमेशा एक बेहतरीन, काबिले कदर और दरवेश की हैसियत से हमारे दिलों में मौजूद रहेंगे। ठीक है, ये हमने तशरीह कर दी है। अब इस तशरीह के बीच में मैंने एलोज नहीं लिखे हैं अभी। ठीक है, अब मैंने तशरीह कर ली है, एलोज मैं नीचे लिखूंगी। एलोज मैंने आपको बता दिए हैं कि इसके अंदर तकरीबन जो है वो चार तरह के हैं। अगर आप ये उतार रहे हैं और आपने लिख लिया है तो ठीक है, मैं फिर इसको रेस करूंगी और रेस करके मैं यहाँ पे आपको फनी महासिन लिख के दूंगी, ताकि आपको फनी महासिन का भी तरीका पता चले कि वो आपने लिखने कैसे। आप में से कोई लिख रहा है तो मुझे बता दें, नहीं लिख रहे तो मैं फिर रेस कर दूं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने तशरीह सारी कर ली। मैंने दो तरीके बताए ना, एक मैंने ये तरीका बताया है कि आप बीच में भी एलोज लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि फनी महासिन। तो अभी मैंने जो तरीका चूज किया वो फनी महासिन मैं एंड पे दूंगी। ठीक है, मैं इसको रेस कर रही हूँ। तशरीह हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने तशरीह कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब तशरीह कंप्लीट करने के बाद एंड पे हम देंगे फनी महासिन की हेडिंग। ठीक है, हमने फनी महासिन दिया और राब्ता का हम निशान लगाएंगे। ठीक है, फनी महासिन की हमने हेडिंग दे दी, राब्ता का हमने निशान लगा दिया। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे रमूजो औकाफ। ठीक है, अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे रमूजो औकाफ कहाँ कहाँ यूज हुए। सबसे पहले मौत बर हक है, खत्मा इस्तेमाल हुआ। उसके बाद मरना सबको है, वक्फा का निशान है। उसके बाद अफसोस के बाद फजाइया का निशान जो है वो होना चाहिए। बताती हूँ मैं कौन से फजाइया का निशान। ठीक है, फजाइया का निशान है। और इसी के एंड पे मैंने आपको बताया था मिसरा का निशान है। ठीक है, और आप देखें आपको नजर आएगा जहाँ ये खत्म हो रहा है। ठीक है, ओहो यहाँ पे हम लिखते हैं मिसरा। अब निशान में डाल रही हूँ ताकि आपको आप भी ना हो परेशान हो कि ये कौन से निशान है। खत्मा का निशान ये होता है जब जुमला खत्म होता है, वक्फा का निशान ये होता है। ठीक है, उसके बाद फजाइया का निशान ये होता है और मिसरा का निशान ये। ठीक है, ये रमूजो काफ जो है वो मुसन्निफ ने इस्तेमाल किए। और गम और कम हम आवाज अल्फाज इस्तेमाल किए। पहली लाइन में मरने मरने में फर्क है। ठीक है, तकरार इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तीन एलोज जो है वो इसमें यूज हो रहे हैं। रमूजो और काफ है इसके अंदर, खत्मा वक्फा फजाइया और मिसरा के गम और कम हम आवाज अल्फाज हैं और मरने मरने तकरार है। दो नंबर कल मैंने बताया था आपको कि एलोज के हैं, और दो नंबर जो हमने हवाला मतलब लिखे हैं उसके हैं, और दो नंबर जो हमने तशरीह की है उसके हैं। ठीक है बेटा।
अच्छा जी, ठीक हो गया। 2 नंबर हमारी तशरीह के, 2 नंबर हमारे हवाला मतन की, और 2 नंबर की तशरीह की है हमने। ठीक है। अब तशरीह के अंदर टोटल लाइंस है हमारे पास, जो बुक के हिसाब से लाइंस है ना, वो तो 1, 2, 2.5 के हिसाब से है, लेकिन अगर हम जो है वो नोटबुक पे लिखें तो ये कम से कम जो है वो 5 लाइनों पे जाएगा। तो हमने जब तशरीह करनी है तो हमने डबल करनी है, लेकिन वो हवाला मतन से हट के होगा। ठीक है। 2 पेजेस बोर्ड आपको देता है तशरीह करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, ये था मिर्जा मोहम्मद सईद। ठीक है। अब जरा आप लोग आए पेज नंबर 8 पे, सफा नंबर 8 पे आए बेटा आप। सफा नंबर 8 पे आए जरा आप। मूसा बेटा निकल आया, फायजा, अली रजा बेटा। जल्दी करें बेटा, हमारे पास 18 मिनट है। ठीक है, अच्छा करना क्या है कि सफा नंबर 8 पे आप आए, सफा नंबर 8 का पहला पैराग्राफ छोड़ के जरा दूसरे पे आए। छोटा सा एक पैराग्राफ है, देखिएगा। मिर्जा साहब घंटों मुताला करते थे, मिला आपको? ठीक है। अच्छा जी, मैं पढ़ के सुना रही। मिर्जा साहब घंटों मुताला करते थे, उनके कुतुब खाने में हर इल्म की किताब मौजूद थी। मुलाजमत दरस व तदरीस ही की थी, इसीलिए नई से नई किताब पढ़ते रहते थे। फरमाते थे कि अगर मैं इतना मुताला ना करूं तो इन अंग्रेज प्रोफेसरों के आगे कैसे ठहर सकता हूँ। पेंशन लेने के बाद उनका वाहिद मशगला मुताले कुतब ही रहा है। उनका ये शुगल अब तक जारी था। पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में सर्फ कर देते थे। इस पैराग्राफ में से दो दो क्वेश्चंस बनाने हैं आपने। अली रजा बेटा 2 क्वेश्चंस आप बनाए, फायजा बेटा 2 क्वेश्चंस आप बनाए। ठीक है, फिर हम इस पर बात करते हैं। 2 2 क्वेश्चंस बनाए।
हाँ जी बेटा, फायजा कहाँ तक पहुंची? नहीं फायजा, ये वाला नहीं। फायजा बेटा, ये वाला नहीं, क्योंकि ये बुक में है। बुक से हट के बनाए बेटा। फायजा बेटा, बुक से हट के बनाए। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो आपने बनाया है ना, पैसे कहाँ खर्च करते थे, ये जो चैप्टर के एंड पे क्वेश्चंस है ना, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन है। हमें वो नहीं बनाने, क्योंकि जो बुक के एंड पे आते हैं क्वेश्चंस, वो नहीं आएंगे आपको। मैं आपको तरीका बताती हूँ। ठीक है। ये मैं आपको एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस का तरीका बताती हूँ। मैंने आपको दिया था। ठीक है, मिर्जा साहब घंटों मुताला करते थे। उनके कुतुब खाने में हर इल्म की किताब मौजूद थी। मुलाजमत और दरस तदरीस ही की थी, इसलिए नई से नई। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ था। मैं अगर सवाल बनाऊंगी ना, तो मैं सवाल बनाऊंगी कि इस इक्तबास में कौन से रमूज़ व औक़ाफ इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, लिख लें फायजा बेटा। इस इक्तबास में, इक्तबास पैराग्राफ को कहते हैं, इस इक्तबास में कौन से रमूज़ व औक़ाफ इस्तेमाल हुए? फायजा लिख दूं या आप लिख लेंगी? अच्छा बेटा, मैं बोर्ड पे लिख दूं? ठीक है बेटा, लिख लें। लिखें, इस इक्तबास में। ठीक है बेटा, इस इक्तबास में कौन से रमूज़ व औक़ाफ इस्तेमाल हुए? रमूज़ व औक़ाफ कौन से हैं? यही जैसे सत्ता, खत्मा, जो निशानात होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल हम बनाएंगे, इस इक्तबास का खुलासा लिखिए। और एक और हम सवाल बनाएंगे, इस इक्तबास की तलखीस कीजिए। इस इक्तबास की तलखीस कीजिए। वैसा एक सवाल छोटा सा और हम बनाते हैं। मिर्जा साहब ने, तलखीस कैसे करते हैं, किसे कहते हैं? मैं भी बताती हूँ फैजा, मैं भी बताती हूँ। ये क्वेश्चन लिख लें। तलखीस आपने नहीं की हुई, मैंने करवाई है इस क्लास में, मैं भी आपको करवाती हूँ। सिर्फ एक ही बस क्वेश्चन लिख लें। इस इक्तबास में मिर्जा मोहम्मद सईद अंग्रेज प्रोफेसरों के आगे ठहरने की बात क्यों कर रहे हैं? इस इक्तबास में मिर्जा मोहम्मद सईद अंग्रेज प्रोफेसरों के आगे ठहरने की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है। फाइजा बेटा, हमने कम से कम मेरा ख्याल है 4 या 5 क्वेश्चंस लिख लिए। ठीक है। अब मैंने आपको सिर्फ ये पैराग्राफ इसलिए दिया था कि ये जो हम बोर्ड का पेपर जब बनाते हैं ना बेटा, तो हम इधर से जो है ना वो सवाल बनाते हैं। ठीक है। वो एक पैराग्राफ आता है ना, उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, वो बुक वाले क्वेश्चंस नहीं होते। ठीक है। हम खुद बनाते हैं वो क्वेश्चंस, क्योंकि हमने बच्चों का नॉलेज चेक करना होता है कि बच्चों ने चैप्टर पूरा पढ़ा है, तो उनको क्या समझ आई है चीज़। ठीक है। अब मैं आपको तलखीस का बताती हूँ, मैंने करवाया है क्लास में, लेकिन आप शायद नहीं थी। ठीक है, हमारे पास 9 मिनट है। आपको तलखीस का बता देती हूँ। इसी पैराग्राफ का जो मैंने अभी आपको जिसमें सवाल दिया उसका मैं बताती हूँ। पहले पहले जो है वो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए तलखीस की। ठीक है, तलखीस है, तलखीस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तलखीस का लफ्ज मुख्तसर से निकला है। ठीक है, ये किसी भी इबारत का एक तिहाई हिस्सा होती है। ठीक है, तलखीस का लफ्ज मुख्तसर से निकला है। ठीक है, और ये किसी भी इबारत का एक तिहाई, ठीक है, 1/3 पोर्शन होता है। ठीक है। अच्छा जी, ये बोर्ड का फायदा ऐसा उल्टा सवाल है कि इसको हम जितना मुख्तसर करेंगे, जितना शॉर्ट करेंगे, नंबर उतने ही ज्यादा मिलेंगे।
2 नंबर का सवाल आता है बोर्ड में आपको, और वो 2 नंबर को के लिए आप जितना मुख्तसर करेंगे, ठीक है, उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप मुख्तसर नहीं करेंगे ना, लंबा लिखेंगे, तो चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि आपको तलखीस का मतलब ही नहीं पता। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये, इसके 2 फार्मूले हैं। एक तो आप जो है वो इसको मुख्तसर मुख्तसर करने का ये मतलब नहीं है कि आधा जुमला उठा के लिख दें और बाकी छोड़ दें। ठीक है, मैं भी बताऊंगी कैसे मुख्तसर करेंगे। और उसके बाद हम कोई भी काम करते हैं तो हम उन्वान ऊपर लिखते हैं। देखिए मैंने उन्वान ऊपर लिखा है ना। लेकिन तलखीस एक ऐसा उल्टा सवाल है कि ना सिर्फ आपने इस इक्तबास को मुख्तसर करना है, बल्कि मुख्तसर करने के बाद पेपर के मिड में जहाँ पे वो ख़त्म होगा, वहाँ पे आपने उन्वान भी लिखना है। 1 नंबर उस उन्वान का होता है और 1 नंबर मुख्तसर करने का होता है। 2 नंबर का सवाल होता है। ठीक है। अब मैं आपको इसी पैराग्राफ का करके दिखाती हूँ, ताकि आपको जो है वो पता चले कि कैसे होगा। हमने किया था, मिर्जा साहब घंटों मुताला करते थे। ठीक है। मिर्जा साहब किताबों के शौकीन थे और अंग्रेज की चालों को जानने में कोशां थे। ठीक है, ये मैंने तलखीस कर दी। हमारे पास लाइन सी 1 2 उस तरह से ढाई है, लेकिन अगर हम जो है वो पेपर के हिसाब से आएगा तो ये कम से कम जो है वो 4 सवा 4 लाइन पे जाएगा। ठीक है, हमने इसको मुख्तसर कर दिया। ठीक है, अब मैंने बातें सारी बता दी कि उन्होंने बताया कि जी घंटों उनके कुतुबखाने में हर इनकी किताब मौजूद थी, घंटों मुताला करते रहते थे, अपनी पेंशन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो किताबें खरीदने में गुजार दिया। सारे पैराग्राफ के अंदर किताबों की बात हो रही थी। ठीक है, और एक अंग्रेज़ की बात उन्होंने कर दी, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने बहुत ऐसा पहले बता दिया था कि अगर आपने अंग्रेज़ों की चालों को, अंग्रेज़ों की साजिशों को समझना है तो उनमें घुसना होगा। उनकी किताबें पढ़ें आप। किताबें पढ़ते हैं पता चलती है कि उनकी मेंटेलिटी क्या है मुसलमानों के लिए। ठीक है, तो मिर्जा साहब किताबों के शौकीन थे और अंग्रेज की चालों को जानने में कोशा थे, और वो कोशिश करते रहते थे। अब हमने ये तलखीस कर दी। अब हम बिल्कुल दरमियान में उन्वान की हेडिंग देंगे, राब्ता का निशान लगाएंगे। अब हम जो हमारे जो है वो अ, जहन में आ रहा है उन्वान, ठीक है, जो आपके जहन में आ रहा है, आपके मेरे जहन में आ रहा है। मिर्जा साहब एक काबिल शख्सियत। ठीक है, अब हमने सिर्फ जो है वो उन्वान लिखने पे इक्तफा नहीं करना, बल्कि उस उन्वान को हमने अंडरलाइन भी करना। ठीक है, पेपर के बिल्कुल दरमियान में आप उन्वान लिखेंगे और फिर उसको आपने अंडरलाइन करना। ठीक है। वालेकुम सलाम। एक मिनट बेटा, मैं आपका सवाल अभी पढ़ती हूँ, मैं देख पा रही। वालेकुम सलाम। अभी देखते हैं। ठीक है, ये अब मैंने जो है वो तलखीस की है। 1 नंबर इसका है और 1 नंबर इस उन्वान का है। ठीक है, एक सेकंड बेटा, मैं देखूँ आपने क्या क्या कह रही हैं, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, वो जो अब आपने सही सवाल लिखा वो ठीक है। रजा मोहम्मद से किताबें क्यों अब पढ़ते रहते थे, बहुत अच्छा सवाल बनाया, शाबाश। मिर्जा मोहम्मद सईद अपनी पेंशन का, ये वाला क्वेश्चन जो है वो स्किप करेंगे हम, क्योंकि बुक वाला है। ठीक है। अजीम शख्सियत बिल्कुल ठीक है। अजीम शख्सियत भी लिख सकते हैं आप। कुछ भी ना लिखे, मिर्जा मोहम्मद सईद ना लिखे, बस लिखे एक अजीम शख्सियत, वो भी पैराग्राफ ठीक, वो भी आपका उन्वान ठीक होगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, फायजा समझ आ गया है? फायजा तलखीस की समझ आ गई है? क्योंकि क्वेश्चन आपका जो सेकंड क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर ये एक क्वेश्चन आता है
तलखीस का। ठीक है। और फातिमा बेटा, आपको तलखीस समझ आई है? फातिमा, तलखीस समझ आई है? हमें समझा दो दोबारा फातिमा सईद बेटा। अच्छा, मैं समझा देती हूँ दोबारा, कोई बात नहीं। अच्छा फातिमा, क्या है तलखीस? तलखीस का लफ्ज मुख्तसर से निकला है। ठीक है, तलखीस का लफ्ज मुख्तसर से निकला है। और तलखीस जो है वो कोई भी आपको जो है वो एक इबारत आ जाती है। ठीक है, एक आपको पैराग्राफ आ जाता है, उस पैराग्राफ का वन थर्ड पोर्शन आपने लिखना होता है। वन थर्ड का ये मतलब नहीं है कि उसकी अहम अहम चीज़ों को छोड़ दें और एक जुमला को उठा के लिख लें। यानी पूरे की पूरे जो है वो जो इबारत है उसका निचोड़ क्या है, जैसे दरिया को हम कूजे में बंद करते हैं ना, वैसे किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा फातिमा बेटा। देखिए। ठीक है, अब हमारे पास पैराग्राफ था पेज नंबर 8 का। सेकंड पैराग्राफ हमने लिया था तलखीस के लिए। मिर्जा साहब घंटों मुताला करते थे, उनके कुतुबखाने में हर इनकी किताब मौजूद थी। मुलाजमत दरसो तदरीस ही की थी, इसलिए नई से नई किताब पढ़ते रहते थे। फरमाते थे कि अगर मैं इतना मुताला ना करूँ तो अंग्रेज प्रोफेसरों के आगे कैसे ठहर सकता हूँ। पेंशन लेने के बाद उनका वाहिद मशगला मुताला कुतब ही रहा। उनका ये शुगल अब तक जारी था। पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में सर्व कर देते थे। ठीक है। अब हमने इस पैराग्राफ को मुख्तसर करना था क्योंकि वन थर्ड पोर्शन करना था। ये जो हमारे पास 2.5-3 लाइनें थी, इसको हमने तकरीबन 1.5 लाइन पे ख़त्म करना था। तो मैंने लिखा, मिर्ज़ा साहब किताबों के शौकीन थे और अंग्रेज़ की चालों को जानने में कोशा थे। यानी सर सैयद ने जो ये कह दिया था कि जब तक हम अंग्रेज़ों के अंदर घुसेंगे नहीं, उनकी जहनियत जो है वो को हम समझ नहीं पाएंगे। जब तक हम अंग्रेजी किताबों का मुताला नहीं करेंगे, हमें मुसलमानों का जो है वो कैरेक्टर पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और इसी के एंड पे, वैसे उन्वान हम कोई भी काम करते हैं मैं स्टार्ट में लिखती हूँ ना, लेकिन ये ऐसा बोर्ड का उल्टा सवाल है कि इसको जितना आप मुख्तसर करेंगे उतने ही नंबर भी ज्यादा मिलेंगे। और उन्वान आप नीचे लिखेंगे तो आपको नंबर, एक नंबर उन्वान का है और एक नंबर मुख्तसर करने का है। उन्वान के नीचे आपने लाइन भी लगानी है। ठीक है। और उन्वान जब आप लिखेंगे तो ये जो मैंने ऊपर लिखा है उन्वान जो हमने चूज किया है, वो हम ब्लू कट मार्कर से लिखेंगे। ठीक है, समझ आया फातिमा बेटा? जी फातिमा बेटा, समझ आ गया? ठीक हो गया। अच्छा जी, फातिमा बेटा, आप थोड़ा सा देर में इन हुई है तो मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के पैराग्राफ्स बताए थे, जो बोर्ड आपको तशरीह के लिए दे सकता है। और जो बोर्ड आपको एक इबारत देगा और नीचे क्वेश्चंस होंगे उसके लिए। ठीक है, आप भी नोट कर लें। स्टार्ट पे आ जाए जहाँ प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद की हेडिंग है। पहला पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में आता है। सुबह अखबारों में खबर पढ़कर दिल धक से रह गया। ठीक है। उसके बाद फिर पेज नंबर 7 पे आ जाएं। सेकंड पैराग्राफ है, मिर्जा साहब दिल्ली के शुरा के एक मुतमव्विल खानदान के चश्मे चराग थे। और ये पैराग्राफ हमारा खत्म हो रहा है 1 2 3 4th लाइन पे है। हासिल करके इल्मी हलकों में नमूद हासिल की, यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके बाद हम आएंगे पेज नंबर 8 पे। इसका फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ के सेकंड पैराग्राफ तो हमने अभी किया है क्लास में। थर्ड पैराग्राफ है, मिर्जा साहब की जिंदगी बड़ी सीधी सादी थी, करोफर या ठाट बाट से कभी नहीं रहे। यहाँ से लेके कल्बे मुतमइन्ना की दौलत से माला माल थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसका लास्ट पैराग्राफ है फिर, मौत बरहक है। ये बोर्ड में अक्सर आता है, एक ये वाला पैराग्राफ और एक पहला पैराग्राफ, ये अक्सर आता है बोर्ड में। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जब आप फ्राइडे वाली क्लास में आएंगे
تو پھر ہم نانی بستی کے اندر کون سے جو ہے، کوئی بات نہیں بیٹا، تو کام ہے یہ۔ نانی بستی کے اندر جو پیراگراف ہے ہم وہ کریں گے، کوشش کریں کہ بالکل بھی جو ہے وہ چھٹی نہ کریں، گیپ نہ دیں، کیونکہ بالکل اب آپ کے جو ہے وہ پری بورڈ چل رہے ہیں اور بورڈ کا پیپر 18 کو آپ کا پہلا پیپر ہے۔ اور میں نے جہاں تک دیکھا تھا تو میرا خیال ہے کہ تیسرا پیپر اردو کا تھا، مجھے یاد نہیں ہے ڈیش تو میں نے دیکھی تھی، لیکن بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے 75 میں سے 74، 73، 72، 71 اور 70 لاسٹ ہے بس منیمم، کہ آپ نے اتنے نمبر لینے، ٹھیک ہے؟ اور نوٹس وغیرہ میں بھیجتی رہتی ہوں وہاں پہ سر میک کو، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو فارورڈ کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات کریں گے اب نیکسٹ ویک میں۔ اور اب آپ لوگوں کا کل میتھ کا پیپر ہے جو ایب سیکس سے وابستہ ہے، کل میتھس کا پیپر ہے اور اگلا پیپر اردو کا ہے جی، تو اس سے پہلے بھی ہم کلاس کریں گے، میں اردو کی ایک کلاس کروں گی اس سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ فرائیڈے کو ملتے ہیں، لیکن فرائیڈے سے پہلے آپ کی کلاس ہے تو میں کلاس کروں گی آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔